Good morning students. Today we'll discuss about ideal and non-ideal solutions. Okay, so ideal solutions are those solutions which obeys Raoult's law. जो Raoult law को obey करते हैं that are ideal solutions. Okay, so Raoult's law को obey, Raoult's law is what? It is the law which is telling about that partial pressure is directly proportional to the mole fraction of the solute. ठीक है, mole fraction पे depend करेगा and we had derived like this that P1 is equal to P1 naught x1 and P2 is like P2 naught x2. Okay, it should be equal and this was the graph for Raoult's law. Okay, we had seen that day. Okay, so इसको obey करना means it is saying that, for example, मैं एक example से समझाती हूँ आप लोग को, that here A के molecules हैं और ये B के molecules हैं. ठीक है, एक component है A और एक component है B. जब हम इसको mix करते हैं, when we'll mix each other these two, what will happen, जो नया solution बनेगा उसमें कोई भी चीज़ अलग नहीं होगी. मतलब कि इसका जो del V mixture, del V मतलब change in volume, मान लो ये 10 ml है, ये 10 ml है, तो ये जो वॉल्यूम रहेगा ये 20 ml होगा. ठीक है, ऐसे ही जो डेल एच मिक्सचर है, डेल एच मिक्सचर मतलब हीट जितना इवॉल्व हुआ या हीट जितना एब्जॉर्ब्ड हुआ. ठीक है, ए और बी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, ए और बी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए जितना हीट लगा उतना ही हीट, ये मान लो ये बना, ए बी बना, तो इसमें जो है, इसमें जितना हीट खर्च हो रहा है उतना ही हीट इसमें रिलीज हो रहा है. अंडरस्टूड? वॉट एवर द हीट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू द हीट इवॉल्व्ड. ओके, हीट रिलीज्ड बराबर होगा इसके. ठीक है, तो डेल वी मिक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल एच मिक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 0. पी थियोरिटिकल विल बी इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड. पी थियोरिटिकल पी ऑब्जर्व्ड के बराबर होने का मतलब वॉट एवर वी हैड थॉट, ओके, दैट हैज़ बीन the observed value also. So the graph was like this. You might have seen the graph. We had discussed this graph earlier. Okay, so the examples are some of the examples. I am just reading it. You can write solutions that obey Raoult law over the entire range of concentration. Okay, the entire range of concentration are called ideal solution, are called ideal solutions. Okay, are called ideal solutions. Here P theoretical will be equal to P observed and del H mix is equal to 0 and del V mix is also equal to 0. It means no heat evolved or absorbed during mixing. Okay, mixing of solution. This is possible when AA and BB is equal to AB. The intermolecular attraction between AB is equal to AA and BB. Okay, AA and BB. The intermolecular attraction is equal to AA and BB. Okay, some examples are N-hexane and N-heptane. Then second, this is one example. Okay, then second example is bromoethane and chloroethane, and then benzene and toluene. Okay, these are the examples. Now we will discuss non-ideal solution. It requires some explanation, so please look it carefully. Okay, non-ideal solution. Non-ideal solution, obviously from the name itself, it does not obey Raoult law. It does not obey Raoult's law over the entire range of temperature and concentration. Okay, here it will not obey. Now two conditions can be there. One positive deviation and second is your negative deviation. Okay, one positive deviation and second is negative deviation. The positive deviation implies that the vapor pressure, what we means whatever will be the vapor pressure, that will be more. Okay, here the graph is saying that this will be more. The theoretical is this one and this will be, the red one will be the observed one. Okay, and the negative deviation is telling that the graph should be like this, but it is below, means it is lower than the observed, it is lower than the theoretical one, means P observed will be lower than the P theoretical. Okay, so how it happens, let's see. Here what is happening, here the molecules of AA and BB is taken. Okay, you can take this solvent as solute as your wish, you can take. Here for example this is solute and this is solvent. When we are mixing these two, okay,
what is happening, the molecules which the solution which is formed, in that solution the intermolecular attraction between A and B is very low. ये molecules एक दूसरे को बिल्कुल hate करेंगे, they would be repelling each other, ये एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे, ठीक है। इस तरह के कंपोनेंट कब बन सकते हैं, जब दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलरी जुड़े नहीं होते, जो वोलाटाइल होते हैं बहुत, वो इस टाइप के मतलब कंपोनेंट्स बनाते हैं, इस टाइप के सॉल्यूशन। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज विल बी वेरी लो, ओके, इट विल ऑलवेज हेट ईच अदर, ये एक दूसरे को एकदम हेट करेंगे और एक दूसरे से दूर भागेंगे, दे विल बी ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम ईच अदर, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये इससे समझते हैं, ए और बी के मॉलिक्यूल्स को हमने जोड़ दिया, ठीक है। ए और बी के मॉलिक्यूल्स को जब हमने आपस में मिलाया तो जो ये इसका जो जितना फोर्स था, इसका जितना फोर्स मतलब जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से ये जुड़े थे, वो ये दोनों ज़्यादा उससे जुड़े हुए थे, मतलब दे आर अट्रैक्टिंग विथ मोर फोर्स, बट हियर व्हेन वी मिक्स दिस टू द न्यू कंपोनेंट इज़ एंटायरली डिफरेंट। ये इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हुआ वो बिल्कुल वीकर था इन दोनों की अपेक्षा। अंडरस्टूड? सो वी कैन राइट लाइक दिस, ये तो है ही कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू ए ए एंड बी बी, ओके। सो व्हाट हैपनिंग, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, दिस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज़ वेरी लोअर देन ए ए एंड BB, okay. So this is the first point, we can say that the intermolecular attraction between AB is very lower than AA and BB. I have written here the intermolecular force of attraction between AB is weaker than AA and BB. They repel each other, okay. जब ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे, वेपर जल्दी बनाएंगे, एक दूसरे से जल्दी भाग जाएंगे और टूटने की कोशिश करेंगे। तो इन दैट केस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज्ड, ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज्ड। हियर आर द पॉइंट्स विच आर डिस्टिंग्विशिंग देम, ओके, like mixture of ethanol and acetone, ethanol and water, okay, CS2 and carbon disulfide plus acetone, ठीक है। अब ये वेपर जल्दी बनाएंगे तो इन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम हो जाएगा। वेपर जल्दी बनाएंगे मतलब वेपर प्रेशर जल्दी क्रिएट होगा। वेपर प्रेशर जल्दी क्रिएट होगा, किस टाइप के सॉल्यूशन ऐसा कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो। इनका ग्राफ हमेशा इस तरह से जाएगा, जितना भी ऑब्जर्व हमने जो सोचा था, वॉट एवर वी हैड थॉट, ठीक है, कि पी जो थियोरिटिकल पी ये एक दूसरे के बराबर नहीं होता, लेकिन जो ऑब्जर्व्ड वाला मिला उसका वेपर प्रेशर कहीं ज़्यादा हुआ पी थियोरिटिकल से, ओके। So in positive deviation what will happen, P observed will be more than the P theoretical, okay, the graph will be above, okay, above the original one, okay. Okay, now here I am explaining this also, del V mix will be greater than 0 and del H mix will also be greater than 0. ये due to weak intermolecular forces के कारण ही होता है। I will explain this again also, I will explain this by an example, okay. Let's now see in this first, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, P ऑब्जर्व जो होता है वो कम हो जाता है पी थियोरिटिकल से। इसमें मॉलिक्यूल्स, जैसे इसके मॉलिक्यूल्स में ए बी का इंटरेक्शन बहुत कम है ए ए और बी बी से। हियर इन नेगेटिव डेविएशन द इंटरेक्शन ऑफ ए बी विल बी वेरी मच मोर देन ए ए एंड बी बी। ए बी का जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द डिफरेंस, this will be AB will be more than AA and BB. The intermolecular force of attraction between AB is more than AA and BB. तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, दे विल ट्राई टू होल्ड देमसेल्व्स। इसके मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू होल्ड ईच अदर, ठीक है। ये अपने आप मतलब इनके बीच में दे वुड लव ईच अदर एंड दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। सो इसके बीच में अच्छा खासा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब इनका यही ऑब्वियसली इक्वल नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होगा, डेल वी मिक्स इज लेस देन 0 एंड डेल एच मिक्स इज ऑल्सो लेस देन 0। आई एम टेलिंग यू विथ एन एग्जाम्पल कि व्हाट इज हैपनिंग, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन होता है, मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2 होगा। दोनों के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखना चाहेंगे एंड दे वुड देयर विल बी मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ओके,
ठीक है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है। ये क्यों हो रहा है ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फिनॉल एंड वी हैड टेकन हियर एनिलीन, इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है, तो उसके कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली पकड़ के रखना चाहते हैं। अंडरस्टूड। इन दिस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनोलिक प्रोटॉन एंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज स्ट्रॉन्गर, ओके, स्ट्रॉन्गर, बस स्ट्रॉन्गर, ओके। aniline is stronger, you can say, due to hydrogen bonding, okay. As the strong energy as the bond is strong, more energy is released. हाँ, that I want to explain you. फर्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। वहाँ पे AB का इंटरैक्शन क्या होगा, वीकर होगा, हियर AB का इंटरैक्शन ज़्यादा होगा। अंडरस्टूड। AA और BB की अपेक्षा, ओके, इफ विल कंपेयर विद दैट, ठीक है, द इंटरैक्शन हियर विल बी मोर एंड देयर विल बी लेस, ओके। हियर द वेपर प्रेशर विल बी लेस एंड देयर द वेपर प्रेशर विल बी मोर, ठीक है। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, वहाँ पे कम ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। हियर वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजेस। ज़्यादा देर तक बॉयल करना पड़ेगा क्योंकि वेपर प्रेशर कम प्रोड्यूस होगा। अंडरस्टूड। बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटली इंटैक्ट विथ ईच अदर। अंडरस्टूड। एज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर very strong, okay. Like this in chloroform and acetone also the strong hydrogen bonding is there, so the molecules are very much intermolecularly attached with each other, okay. Okay, now I want to say I have written an example that del H mix is not equal to 0. When will be more and when will be less? Here we had written, I am just giving an example to you, ठीक है। ये है पॉजिटिव डेविएशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन में वी हैड रिटर्न कि डेल वी मिक्स is greater than 0 and del H mix is also greater than 0, okay. For example, when if we are comparing, जैसे AA और BB को आप मिक्स करो, here the molecules of AA is there and here the molecules of BB is there, okay. तो यहाँ पर when we mix this, okay, जब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन मतलब ए बी का इंटरैक्शन विल बी वीकर, ठीक है। ए बी का इंटरैक्शन वीकर है, तो जब हम एक दूसरे को मिक्स करेंगे, ऑब्वियसली जब हम एक दूसरे को इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स तो क्या होंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत वीकर होगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऑब्वियसली ये 10 ml है, ये भी 10 ml है। हाँ, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डेल वी मिक्स, ओके, which is more than 0, okay. क्यों more than 0? because there will be weak force of attraction between A and B. वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा एक दूसरे को छोड़ के भागने का, दे विल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे को छोड़ के भागने का ही प्रयास करेंगे। तो व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली द वॉल्यूम विल राइज, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल राइज, ओके, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड। बट इन दिस केस, इन द सेकेंड केस, नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए के मॉलिक्यूल्स हैं और बी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। व्हेन वी विल मिक्स दिस टू, ए एंड बी के बीच में अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इट विल बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो ये क्या होंगे मॉलिक्यूल्स, ये लोग क्या होंगे, एक दूसरे से थोड़ा दूर भागने का प्रयास करेंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, बट हियर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास रहेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू होल्ड विथ ईच अदर एंड द वॉल्यूम, द चेंज इन वॉल्यूम, द वी मिक्स विल बी व्हाट, इट विल बी लेस देन 0। मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, 0 से कम होगा, क्योंकि देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स विल बी, ऑब्वियसली इट इज़ होल्डिंग ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे भागने का प्रयास करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम विल राइज, हियर द वॉल्यूम विल रिड्यूस, वॉल्यूम कम हो जाएगा सोल्यूशन का, बिकॉज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रोंगर। अब लाइक दिस डेल एच विल सी, ओके, डेल एच मीन्स द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए को तोड़ना है, यहाँ बी को तोड़ना है, और यहाँ पे ए बी, इट इज़ व्हाट, इट इज़ कंबाइनिंग, ठीक है। तो हियर हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस ए
and here how much energy is required to break this BB should not be equal to this the formation of A and B. obviously समझ में आ रहा है, यहाँ पे जितनी एनर्जी लगी इसको तोड़ने में, यहाँ पे जितनी एनर्जी इसको लगी तोड़ने में, वो इसके बराबर नहीं है जितनी एनर्जी लग रही है उसको बनने में, ठीक है, वो तो नहीं है, बट उससे ज़्यादा कैसे है दैट विल सी. Okay, now for example here the energy required is 10 joule, here the energy required is 10 joule, but here the formation you know this is very weak. ओके तो वीक बॉन्ड को बनने के लिए भी उतनी एनर्जी नहीं रिलीज होती है, वीक बॉन्ड जब बनता है तो, ठीक है, तो द एनर्जी रिलीज इज 12. ओके द एनर्जी रिलीज इज 12. नाउ इफ विल ऐड दिस टू द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एट द एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, एंड दिस विल बी ऑब्वियसली दिस विल बी एनर्जी रिलीज्ड, तो एनर्जी रिलीज्ड है तो नेगेटिव होगा, ठीक है, तो +20 माइनस 12 क्या हुआ +8 हुआ, +8 हुआ मतलब ये पॉजिटिव में आ रहा है तो डेल एच इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, लाइक दिस. यहाँ पर इन नेगेटिव डेविएशन, ओके इन नेगेटिव डेविएशन ए में जितनी